Hello. How are my pupils? So, you must be knowing me, and if you are not knowing me, so please watch the introductory or the syllabus lecture of English. Okay, so my name is Sandeep Kumar Malik, and I am your English and English communication teacher. So, you must be thinking, why an IIT Kharagpur student, second year BSc chemistry student, is teaching us English and English communication? Firstly, this is not just English, so this is English language. Okay, language. And this is English communication. And I have answered all these. That why Sandeep Kumar Malik, IIT Kharagpur, second year student, is teaching you English language and English communication. And for what he is teaching you, let me just one word answer, that is NSET. What is NSET? Why you should give it, and why you should choose English language and English communication as both the language options in NSET. Okay, all that has been answered in the introductory or syllabus lecture, and you should watch it, because in that not only English or NSET or anything else is covered. It has also covered my 18 years experience of being alive. Okay, my wisdom, and why you should see my wisdom, why you should imbibe my wisdom, because it's important also. Okay, so let's continue with our lecture. So today's agenda, or today's our goal, why is it this happening, why is this happening? So my junior is sitting in front of me, and he just said me 18 number page पे आ गए हो. Like, when you are teaching or when you are learning yourself, your seniors will teach you, your juniors will teach you, and you must understand that anyone can teach you. Okay, and you should learn from them. Okay, so today's agenda, or to what's our today's goal, is that we will learn about parts of speech. Okay, this is our main thing, parts of speech. Okay, and the chapter under which parts of speech is, no, sorry, actually, verb is a part of speech, of which is a part of speech for the English language. I am this is like, you must be thinking, is this a tongue twister? No, actually. So in English language, there is a very important chapter that is part of speech, and verb is also a part of that. Okay, verb. So I will teach you that. So everyone who has watched my introductory lecture must be knowing, whenever someone asks me a question, whenever anybody asks me a question, I counter question them. Okay, I counter question them. Why do I counter question them? Because when you counter question a person about what question he has asked, or he or she has asked, you actually dive deeper under what he is trying to listen, or what answer he wants. Okay, so when a person is asking, like me, I'm asking you what is verb, you should ask me also and yourself also, that why is it used? Okay, where is it used, and why should we learn it? And if we have also learned it, then why should we master it? Okay, learning is a thing and mastering is the other thing. So I would say, why you should master verb. Okay, why you should master verb. So all this will be answered in further lecture. So like, as I said, so I would be answering now. Let's answer what is verb, its types, its uses, and we will be doing many examples. Okay, example is very important, because व्हाइट आसुची ना देखा जाओ भाई देखा जाओगी व्हाइट एंड व्हाइट आसुची ना ना भाई ब्लैक देखा जाऊँ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଡିଟ୍ କରିଦେବି। ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବୁ, 4 ମିନିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। So okay, let's continue. There was a glitch and I had to repair that. So what is verb, what are the types of verb, where is it used, and we will be doing many examples. So you must be asking, okay, I would actually say it properly in further lecture. Okay, so just, okay, verb is very important part of English language, and it's classified under parts of speech chapter.
it is very important for all students, especially for those who are preparing for competitive exams. Okay, more than 2 questions are asked about this topic in every competitive exam. You must be thinking that 2 questions, why are we preparing for this only if there are 2 questions? So firstly, it's about all the competitive exams. So if you learn verb from here, you are eligible, or you are prepared enough for every exam. And this is average, that 2 questions, it's an average thing. Okay, that averagely 2 questions come everywhere in English. Okay, in verb, from verb in English language test. Okay, so पता नहीं, बट मैं बोल देता हूँ अभी। मुझे इंग्लिश, आपने मेरी इंग्लिश सुन ली, आपने मुझे पेडोलॉजी देख ली कि मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूँ। तो अभी मुझे इंग्लिश जो है आपको हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका इंग्लिश या तो सब्जेक्ट नहीं होगा, या फिर वो उस बैकग्राउंड से नहीं आते होंगे जहाँ पे वो इंग्लिश से उतने एक्सपोज हो सके। ठीक है, तो मैं उन सभी बच्चों को समझाने के लिए अभी इंग्लिश को पढ़ाऊंगा इन इंग्लिश में। व्हाट इज इंग्लिश में? हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके, मैम आई ऑलवेज गिव बैड जोक्स। ओके, सो अभी मैं आपको कुछ लेक्चर्स, लाइक 3 लेक्चर आपको हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा, इंग्लिश जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद मैं पूरा ही टोटली इंग्लिश में चल जाऊंगा, क्योंकि आपने मेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा होगा माई इंग्लिश इज वेरी गुड एंड आई वांट टू मेक योर इंग्लिश ऑल्सो वेरी गुड। बट और जो बच्चे मेरे लेक्चर्स को भी देख लो, हिंदी में समझ लो, ठीक है, और उनके लिए मेजर अनाउंसमेंट है जिनको हिंदी में मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो वर्ब, जैसे कि हमने समझा कि वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, और वो एक पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर का। ठीक है, और जैसे कि हमने समझा कि हर एग्जाम में 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट एनसेट को जो हम लोग हैं, हम लोग 3 साल से उसका पेपर एनालाइज कर रहे हैं, और पेपर के साथ उसका जो डेमो टेस्ट होता है उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। तो हमें उसमें पता चला कि जो वर्ब चैप्टर है उससे अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। अब तुम बोलोगे 4 to 5 क्वेश्चन तो बहुत कम है, बट तुम अगर कैलकुलेट करो भाई, 4 to 5 इंटू 4 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स हो रहे हैं भाई, 20 मार्क्स। ओके, 20 मार्क्स ऐसा मार्क्स है जिससे तुम्हारा IIT खड़गपुर या NIT, कोई सा NIT डिसाइड हो सकता है, या फिर तुम IIT खड़गपुर से IIT भुवनेश्वर जा सकते हो। ठीक है, 20 मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। तुम्हें अगर 20 मार्क्स आ गए तो तुम IIT खड़गपुर, 20 मार्क्स नहीं आए तो तुम IIT भुवनेश्वर। तो इसीलिए या तो प्रॉब्लम हो सकता है कि तुम्हें अपना ड्रीम सब्जेक्ट ना मिले, सब्जेक्ट ऑफ चॉइस ना मिले। ठीक है, तो उसके लिए भी ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बात है, जो जो 2 क्वेश्चन लिखा है वो एवरेजली लिखा है। जब हम सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में देखते हैं तब एवरेजली हर कम्पिटेटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो होता है वो वर्ब से आता है। पर बात है, जब तुम अच्छे से पेपर को कभी एनालाइज करोगे तुम्हें पता चलेगा कि जो वर्ब है उसको इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा गया है, ऐसे चैप्टर में रखा गया है, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस ले लो, अगर वो वर्ब से क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हो कि नहीं भी आ रहे हो, बट जो पैराग्राफ है या जो सेंटेंस है उसको अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको वर्ब को भी आना चाहिए, आपको वर्ब में मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए वर्ब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग बहुत सीख ले कि वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये करना है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि वर्ब है क्या। ठीक है, वर्ब इज अ वर्ड दैट सेज व्हाट हैपेंस टू समबडी और व्हाट समबडी और समथिंग डज। ठीक है, okay, verb we can be modify verb by using auxiliary verb or verb phrases to show different conditions, aspects and moods. Okay, okay, इधर तक मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये जो लाइन है शायद थोड़ा सा ग्रामेटिकली रॉन्ग है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ये तन्मय पांडा की मिस्टेक है, जो कि हमारे फिजिक्स ट्यूटर है। एंड ही वाज लाइक, मैंने उसकी पीपीटी बनाई थी तो मैंने उससे फेवर मांग लिया कि तुम ये पीपीटी बना, एंड उसने ये कर दिया। ठीक है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स इग्नोर दैट, आपको मीनिंग समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है, इंग्लिश सेंटेंस का एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी के साथ क्या हो रहा है यार, किसके साथ क्या हो रहा है, या जो जो इंसान है या जो भी कुछ है, जैसे कोई थिंग भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, वो किसी के साथ क्या कर रहा है। ठीक है, वर्ब ये समझाता है कि किसी के साथ क्या हो रहा है या कोई चीज किसी के साथ क्या कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज को आंसर कर देता है। ठीक है, अब जो वर्ब है ये मॉडिफाई होता है ऑक्सिलरी वर्ब से। ठीक है, जो मेन वर्ब पार्ट है, जो मेन वर्ब जो वर्ड है वो ऑक्सिलरी वर्ब से मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब के अनुसार वो वर्क करता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, उसमें एक मेन वर्ब होता है और एक होता है सेकेंडरी वर्ब। सेकेंडरी वर्ब जो काम करता है वो मेन वर्ब के सपोर्ट में काम करता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के वो ऑक्सिलरी वर्ब के अनुसार वो डिफरेंट कंडीशंस
अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग एस्पेक्ट्स, ठीक है, एस्पेक्ट्स, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। और मूड्स, मूड्स का मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जब आप खुद आप जो फील करते हो वो मूड होता है, ठीक है। तो आपके मूड के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार वर्ब चेंज होता है, ठीक है। तो इतनी बात थी। एंड मूड मतलब आप समझ लो कि जैसे कि आप खुश हो तो ये आप जो फील कर रहे हो, मतलब आप जो महसूस कर रहे हो कि आप मैं खुश हूँ, तो ये आपका मूड अच्छा है, मूड आप हैप्पी मूड में हो। अगर आप एंग्री हो, आप गुस्से में हो, तो ये आपका मूड हो गया एंग्री मूड, ठीक है। तो उसके अनुसार वर्ब चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमने हम अब हमने उसका डेफिनेशन पढ़ लिया, तो अब हम उसके बारे में समझते हैं कुछ एग्जांपल्स करके। और मैं बोलूंगा बच्चों, मैं वही बोलने वाला था वहाँ पे भी, बट मैं आपको ये करा के बोलूंगा, ठीक है। जैसे कि मेरी टीचर्स जो थे, जो मेरी इंग्लिश टीचर थी मैम, लाइक मैं बस एक मैम नहीं, मेरी जितने भी इंग्लिश टीचर थे, आई एम वेरी मच थैंकफुल, लाइक फ्रॉम क्लास 2 माई इंग्लिश टीचर वॉज माई फेवरेट टीचर, एंड टिल माई क्लास 10 और 12 the दो मोस्ट मदरली फीलिंग दैट आई गॉट फ्रॉम वाज माय फ्रॉम इंग्लिश टीचर, ओके। सो इंग्लिश जो टीचर्स होते थे हमारे स्कूल में, वो क्या करते थे कि आपको हमेशा इतने सारे एग्जाम्पल्स कराते थे, इतने सारे एग्जाम्पल्स एक्चुअली कराते नहीं थे, लिखवाते थे, और उसके आंसर भी बनाने बोलते थे। इतने कि मैं बोलूँगा कि हमारा इंग्लिश की वजह से अराउंड 3 से 4 कॉपी खत्म हो जाता था। तो हम लोग उस टाइम सोचते थे कि मैम, हम लोग एक इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट के पीछे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं कि हम लोग उसके चलते 3-4 कॉपी खत्म कर रहे हैं, ठीक है, लिख लिख के उसके एग्जाम्पल्स मैम डिक्टेट करती थी, मैम बोलती थी और मुझे लिखना होता था, ठीक है। तो इसके वजह से जब हम अपना स्कूलिंग का पीरियड पार कर चुके होते हैं, फिर जब मैं कॉलेज में आता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मेरी जो इंग्लिश है अराउंड माई पियर्स, मीन्स मेरे बैच में हो गया फिर किसी से भी हो गया, इट्स मच मोर बेटर देन देम। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू माई मैम, माई ऑल द इंग्लिश टीचर्स आई गॉट इन माई लाइफ, ओके। अब उन मुझे अभी पता चल रहा है कि उन्होंने जो मुझे एग्जाम्पल्स इतने सारे कराए, इतने सारे जो डिक्टेट किया, मीन्स उन्होंने बोला एंड मुझे वो लिखना पड़ता था, तो उसकी वजह से मुझे वो डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये डेवलप हुआ कि मुझे कभी मेहनत करने से डर नहीं लगता, मुझे आप जितना मेहनत करने बोलोगे मैं उतना मेहनत कर दूंगा, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात कि मेरा इंग्लिश उसकी वजह से इम्प्रूव हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, क्योंकि आपके माइंड आप सुन के लिख रहे हो, तो आपके बीच में जो ईयर और बॉडी, माइंड बॉडी गैप कनेक्शन जो बोलते हैं, वो गैप खत्म हो जाता है, माइंड बॉडी में जो गैप रहता है, कनेक्शन में जो गैप रहता है वो खत्म हो जाता है। इसके वजह से आप जो सोच रहे हो ना, जैसे कि आप, जैसे हमारी मातृभाषा में हम लोग जो भी होते हैं इंसान, आप खुद का जो इनर वॉइस होता है वो तो आपकी मातृभाषा में होती है, ठीक है। तो आपका वो क्या होता है, इसलिए लोग स्टटर करते हैं इंग्लिश में। दिस इज आई एम गोइंग इनटू इंग्लिश कम्युनिकेशन, बट दिस आई वुड से दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको इंग्लिश में स्टटर नहीं करना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। क्योंकि माइंड माइंड बॉडी कनेक्शन जो आप सुन रहे हो या फिर आप जो देख रहे हो, उसको आपको लिखने में, या फिर आप जो लिख रहे हो उसको बोलने में, या जो आप सोच रहे हो उसको बोलने में भी एक कनेक्शन रहती है। तो वो माइंड बॉडी कनेक्शंस का जो गैप रहता है वो आपकी मेहनत से ही जाएगी, ठीक है। एंड ये जानी भी चाहिए, ये मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बोला होगा, बट फिर से आप लोग सुन लो कि इंग्लिश इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, ठीक है। एंड मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट वो अभी नहीं है, अभी आपको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप अभी पढ़ो मेरे साथ, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सो जैसे कि हमने अभी समझा कि ये जो वर्ड है सिंग्स, सॉरी, जो सेंटेंस है शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। तो जैसे हमने समझा था कि वर्ब फ्रेजेस, अब वर्ब फ्रेजेस क्या होता है मैंने वहां बोलना भूल गया, बट मैं आपको अभी समझा देता हूँ। प्लीज एक, आप कॉपी जो भी लिख रहे होंगे, पहली बात तो सब लिखो, लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको भी पता चलेगा हाँ अभी तो समझ गए इंग्लिश कुछ नहीं है, ठीक है। बट जब एग्जाम के टाइम होता है ना, आप वो सब जो, आप मेरे लेक्चर्स फिर से नहीं देख सकते हो एक रात में सारे लेक्चर्स देख लिए चलो बहुत बढ़िया, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप 2x में देखो, 3x में देखो, 6x में देखो, किसी भी x में देखो, नहीं देख समझ पाओगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि आप नोट्स अगर पलटा दोगे ना तो आपको पूरा फ्लैशबैक आ जाएगा, अरे यार ये समझा था, ये समझा था, ये समझा था, ठीक है। तो अभी जो नोट्स बना रहे हो आप, उसमें उसमें एक स्टार ऊपर में या कहीं नीचे में जहाँ पे खाली हमेशा रहता है, उसको समझ लो वो एक नोट्स वाली एरिया है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट नोट बनाओ एक स्टार लगा के कि वर्ब फ्रेजेस क्या होता है। पहले तो बात तो फ्रेजेस वो चीज़ होती है कि वो कंप्लीट सेंटेंस होता नहीं है, वो एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस रहता है, फॉर्म भी नहीं, शॉर्ट सेंटेंस रहता है, जिसको ग्रामेटिकली वेरीफाइड नहीं, ग्रामेटिकली करेक्ट रहना है उसका नेसेसिटी नहीं होता है, उसका नेसेसिटी होता है कि आपको मीनिंग समझ आ रहा हो, ठीक है। तो जो वर्ब फ्रेजेस है वो बस वही है कि आपको मीनिंग समझ आ रहा हो, ग्रामेटिकली उसका देखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आई वुड से दिस वर्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हियर सम वर्ब फ्रेजेस, आपको वो मैं बाद में समझाऊंगा इन अ डिफरेंट लेक्चर, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इफ वी सी दिस सेंटेंस, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है, इसमें जो वर्ब है वो है सिंग्स, सिंग्स, ठीक है। अब आप इस वर्ब वर्ब जो चीज़ है उसका ब्यूटीफुलनेस, उसका उसका इंपॉर्टेंस समझो कि उसने बस एक वर्ड का यूज़ किया,
उससे हमें ये भी पता चल गया कि क्या एक्शन हो रहा है, किसके बारे में एक्शन हो रहा है, एंड ये जो वर्ड है वो तो बता दे रहा है, एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो कुछ भी है वो आपको बता देगा कि कैसा एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो सिंग्स जो ये है ये एक्शन है, ठीक है, ये एक्शन है। सो एज आई सेड यू मस्ट नो द डेफिनेशन, you must be knowing the definition, that is verb is a word that what happens to somebody or what somebody does, somebody or something does, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो she sings beautifully, ये जो भी she है, ये जो भी हमारी बहन है या माता है, ये जो भी कर रही है वो किसी चीज को कर रही है, वो सिंग कर रही है। तो बस एक वर्ड से पता चल रहा है कि वो एक सिंग करी, मतलब कोई सॉन्ग ही होगा या कुछ हिम होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ये एक एक्शन है, ओके, ये एक एक्शन है। अब द कैट इज स्लीपिंग, इसमें आप खुद गेस करो वर्ब क्या है। 1 2 3, ओके आपने गेस कर लिया होगा। सो द हियर द वर्ब इज स्लीपिंग, ओके, यहाँ पे स्लीपिंग है वर्ब यहाँ पे। अब स्लीपिंग तो ये कैट तो स्लीप को कुछ नहीं करी है ना, बट ये स्लीप ये क्या है, ये है स्टेट ऑफ बीइंग। जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग ये है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मीनिंग है कि कैट अभी स्लीपिंग स्टेट में, मीन्स वो भी सो रही है, मीन्स वो स्लीप, लाइक अगर कैट अभी कुछ खा रही होगी तो वो खाने की स्टेट में, ठीक है, वो तो कुछ नहीं कर रही है बट वो किसी स्टेट में, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ही रैन इन द मैराथन, इधर है वर्ब जो है रैन। अब आपको पता ही होगा, आपने गेस कर ही लिया होगा कि जब कोई कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा इन डिफरेंट चैप्टर एंड डिफरेंट लेक्चर। बट आप ये समझ लो कि ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट थी, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ही रैन इन द मैराथन, हियर द रैन वर्ड इज डिपिक्ट्स एन एक्शन, ओके, ये क्या एक्शन हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। एक्शन आप मतलब समझ लो कि कर्म कर्म, ये क्या कर्म हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है, ओके। एंड आई वुड से this is a very important example, and you must actually I would like to uh, I would like to actually explain this more, but this is from a different chapter, will study. So in this sentence I will study for the exams, the will study is totally verb, ओके। ये आप बोलोगे कि सर टोटल वर्ब कैसे हो गया, स्टडी तो कुछ और ही होती है, विल तो कुछ और ही होती है, विल स्टडी टोटल वर्ब कैसे हो गया। तो ये बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही क्लेवर एग्जांपल है इसका कि ये जो एक्शन है ये अभी के एक्शन के बारे में बोल ही नहीं रहा है, ये बोल रहा है फ्यूचर एक्शन के बारे में, फ्यूचर एक्शन, ठीक है, फ्यूचर एक्शन के बारे में बोला जा रहा है इस सेंटेंस में, ओके। सो आप समझ गए होगे कि वर्ब, आपको मोटा मोटी एग्जांपल समझ आएगा कि वर्ब होता क्या है। ये कर्म को दर्शाता है, कर्म को दर्शाता है, ठीक है, वो भी कर्म को ऐसे दर्शाता है कि कर्म क्या कर रहा है वो भी दर्शाता है, और कर्म और मतलब कर्म क्या कर रहा है वो भी दर्शाता है, और किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या कर्म हो रहा है वो भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये होता है वर्ब। अब बस थोड़ा सा और डेफिनेशन कर लेते हैं फिर हम लोग एग्जांपल्स में जंप करेंगे। तो जैसे कि एवरी सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब अलोंग विद अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है, हर एक सेंटेंस जो होता है उसमें संज्ञा के साथ ही रहता है वर्ब, क्योंकि आप अगर आप बता रहे हो कि आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो या फिर आपके साथ कुछ हो रहा है तो वो क्या हो रहा है वो भी तो बताना होगा, ठीक है, मतलब कि किससे द्वारा हो रहा है वो भी तो बताना होगा, तो वो नाउन होता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। वर्ब इज एसेंशियली कम्स इनटू कंसीडरेशन टू एक्सप्लेन व्हाट द नाउन और प्रोनाउन इज डूइंग, ओके। आपको समझ आएगा कि नाउन और प्रोनाउन कर क्या रहा है, यही होता है वर्ब का काम, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज वर्ब करेक्टली इज essential for constructing grammatically accurate and meaningful sentences, okay, this is important। ना आप तो समझ ही होगे कि वर्ब को समझ के ही आप अच्छे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बना सकते हो। द स्पेसिफिक यूजेज ऑफ वर्ब्स डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट, इंटेंडेड मीनिंग एंड ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, कि आप इंटेंडेड मीनिंग, कंटेक्स्ट मतलब कि आप किस कंटेक्स्ट मतलब आप किस बारे में बता रहे हो, ठीक है, आपके जो भी बोल रहे हो वो किस बारे में है उस पर भी डिपेंड करते हैं कि वर्ब कौन सा यूज करोगे आप, ठीक है। फिर इंटेंडेड मीनिंग, अगर आप बोल कुछ रहे हो और आपका मीनिंग कुछ और निकलना चाहिए तो उसके बारे में भी हो सकता है, वो भी समझा सकता है। और ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द एंड द ग्रामेटिकल रूल्स, मतलब ये ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, ओके। These are fundamental components of the sentence that provides
द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। ओके, ये डिस्क्रिप्शन भी देता है। वर्ब्स अगर आप कभी यूज कर रहे हो तो ये डिस्क्रिप्शन भी देता है। आई शुड चेंज दिस पेन। ओके, कलर, व्हाट कलर शुड आई टेक? ठीक है, ओके ओके। So now we have delve into a very important part, types of verb. Okay, types of, so types of verb. Okay, so first is action verb. Okay, as I said, as I said, there can be two types of verb, like the doer, the subject is doing an action, or an action is being done to the subject. ठीक है, तो the action verb explain that only. ठीक है, this type of verb expresses a physical as well as a mental action. ठीक है, आप फिजिकल, ठीक है, ये फिजिकल एक्शन का भी बता सकता है या मेंटल एक्शन का भी बता सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ लो कि ये फिजिकल एक्शन तो आपको समझ आएगा, रन, ईट, डांस। अब मेंटल एक्शन समझ लो आप, मैं कहाँ लिखूँ। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, आई पता नहीं कुछ हो गया प्रॉब्लम। तो मेंटल एक्शंस जैसे कि होता है, लाइक मेंटल एक्शन होता है जैसे कि बिलीव। आप किसी चीज को बिलीव करते हो, किसी में आपकी आपकी क्या बोलूं, लाइक आई बिलीव इन गॉड, मेरी भगवान के प्रति आस्था है, तो आप उसको ये मानते हो, उस भगवान को मानते हो। ठीक है, आई बिलीव इन जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, जय जय श्री जगन्नाथ। ठीक है, आप थिंक करते हो, थिंक, ये भी एक टाइप का मेंटल एक्शन है कि आप सोच रहे हो किसी बारे में, तो ये भी एक मेंटल एक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल ले ले, example would be like I एक जबर इरेजर। ठीक है, like I run on the streets। ठीक है, आई रन ऑन दी स्ट्रीट्स, इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक काम कर रहा है, वो रनिंग कर रहा है। ठीक है, वो रनिंग कर रहा है। अब वो इस ये फिजिकल एक्शन है, रनिंग एक फिजिकल एक्शन है। ठीक है, अब आप अगर मेंटल का एग्जांपल देखोगे, मेंटल एक्शंस का, मेंटल का, ठीक है, मेंटल का अगर समझ लो कि लाइक द इफ यू वर्ड यूज द वर्ड बिलीव, सो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा जो कि आपको भी करना चाहिए। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आप खुद पे बिलीव करते हो, मैं खुद पे बिलीव करता हूँ। आई बिलीव ऑन इन माई सेल्फ, सॉरी, इन माई सेल्फ, बिलीव इन माई सेल्फ। ओके, आप खुद को मानते हो, या आप खुद बोल सकता हूँ खुद को भरोसा भी करते हो, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आप खुद पे ये भी करते हो, ये एक मेंटल एक्शन है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं लिंकिंग वर्ब पे। सो ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है? दीज वर्ब फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड अ नाउन। ठीक है, ये एक नाउन और उसके ये में लिंक करता है। ठीक है, ओके, सो ओके, और एडजेक्टिव दैट आइदर गिव्स द इट न्यू नेम और डिस्क्राइब्स इट। ठीक है, कॉमन लिंकिंग वर्ब्स आर बी, सीम, अपीयर, like okay, I should give a good example to this, like he appears to be a good person। ठीक है, ये जो वर्ब है appears, इसने नाउन को और मीन्स सब्जेक्ट को और नाउन को ये कर दिया, लिंक किया यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट है ही और यहाँ पे जो नाउन है गुड पर्सन। ठीक है, हम उसके बारे में जो बता रहे थे, ठीक है, वो है, या एडजेक्टिव बोल सकते हो। ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर दिया और उसके पीछे जो लिंक किया वो वर्ब नहीं किया लिंक, जो कि है अपीयर। ओके, प्लीज हैव दीज नोट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट।
ओके, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हमने पहले ही समझने का ट्राई किया था. आई शुड क्लीन माई ग्लासेस. ओके स्टूडेंट्स, आई वुड से दैट मैं भले ही नहीं दिख रहा हूँ बट मैं आपको ज़रूर देख रहा हूँ, ठीक है. एंड आई वुड से दैट please study well and the exams are coming soon. So hello students. So you must be knowing that we have covered a major chunk of verb which is a part of speech chapter in our previous lecture. So in this lecture we will covering more types of verb. Okay, so let's start. So the next verb we are what we are learning. I must speak in Hindi. Okay. So जो अभी हम लोग जो verb का type हम लोग पढ़ रहे हैं वो है auxiliary verb, जिसे हम लोग सेकेंडरी वर्ब भी बोल सकते हैं क्योंकि एक प्राइमरी वर्ब को हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब भी है. ओके, सो दीज वर्ब असिस्ट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग टेंस, मूड और वॉइस. ओके, सो लाइक एग्जांपल्स, टेंस ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, हैव विच इज हैव, बी और डू. ठीक है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग है कि जस्ट ये एक ऐसा वर्ब है जो एक मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, उसको असिस्ट करता है मीनिंग को मीनिंगफुल बना, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए. जैसे कि अगर अगर हम लोग अभी एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल होगा शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क. कीप नोटिंग नाउ. ओके, तो यहाँ पे जो हैज़ है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि हैव का एक फॉर्म है. ठीक है, आपको वर्ब फॉर्म एक मैं अलग से टेंसेस के बाद पढ़ाऊंगा क्योंकि दैट इज़ अ वेरी मच टेंस डिपेंडेंट टॉपिक. ओके, वर्ब फॉर्म्स जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि हैज़ और हैव या फिर कुछ भी जो रहती है उसे कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, तो जो हैव है वो हैज़ का जो हैज़ है वो हैव का एक फॉर्म है एंड ये इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क. सो हैज़ जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो एक सपोर्टिंग रोल है इस सेंटेंस में उसका. और फिर अगर हम लोग और आगे जाएं, जैसे कि हम लोग अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे जाएंगे, वर्ब जैसे कि उसका एग्जांपल हुआ कैन, मे, मस्ट. ठीक है, तो इसका भी हम लोग शायद इसी से एग्जांपल दे सकते हैं कि यू मस्ट, एग्जांपल, यू मस्ट डू योर होमवर्क. सो जो फर्स्ट एग्जांपल है, एज ए जस्ट बोल रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल जब बच्चे खुद उम्र करके आते हैं, जैसे कि मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे होंगे जो खुद उम्र कर लेते हैं, जो मैं बोलता हूँ लिखने वो लिख लेते हैं. और जो सेकंड एग्जांपल है वो मैं अपने बदमाश बच्चों को बोल रहा हूँ कि आपको भी आईआईटी पहुँचना है तो आपको भी अपना काम तो करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें जो मस्ट है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है मेन सेंटेंस को, ये मेन वर्ब नहीं है. मीन्स इसका जो रोल है इस सेंटेंस में वो मेन वर्ब का नहीं है, इसको बस सपोर्ट करना है. ओके, तो ये हो गया एक टाइप का ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब. अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका पहले डेफिनेशन सीख लेते हैं. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ब्स रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन. ठीक है, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि मैं अगर इसका एग्जांपल दूं, शी बॉट अ बुक. ठीक है, शी बॉट अ बुक, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट इज बुक. ओके, ऑब्जेक्ट इज हियर, दैट इज बुक. तो उसने बुक को खरीदा. तो जब हमारे पास एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट रहता है, जब एक ऑब्जेक्ट रहता है जिसको हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तब हम लोग ऐसे वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स को यूज करते हैं, दैट इज बॉट. ठीक है, दैट इज बॉट. ओके, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब तो हो गए होगा क्लियर. अब हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब पे जाते हैं. ठीक है, दीज वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग. ओके, जैसे कि अगर हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब में आपको बस एज अ मीनिंग समझा देता हूँ. अगर जस्ट मैं ट्रांजिटिव वर्ब बोलता कि शी बॉट मतलब इस इतना सेंटेंस होता, तो सेंटेंस तो होता नहीं, पहली बात ये हो जाता फ्रेज जो कि मीनिंगलेस होता है. ठीक है, बट तो ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था डिफाइंड, जो कि हम लोग डिफाइन कर दिए, दैट इज बुक. ओके, जैसे कि अभी हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब्स अगर पढ़ेंगे और हम लोग उसका यूज करना चाहेंगे तो उसका द बेस्ट एग्जांपल वुड बी द बर्ड फ्लू, द चाइल्ड रैन,
ओके, अब हम लोग इन दोनों सेंटेंस में सॉरी, लेट मी राइट इट क्लियरली। जैसे कि द फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज द बर्ड फ्लू। ओके, इसमें ये नहीं बोला गया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, आपको जितना दिख रहा होगा डिफाइंड ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ये एम्बिगुअस सेंटेंसेस को बोलते हैं कि आप इसमें खुद अज्यूम कर सकते हो कि क्या हो रहा है आगे, ठीक है। तो जैसे कि द बर्ड फ्लू, आपको नहीं पता कि बर्ड वेयर इट फ्लू, ओके, नहीं पता कि कहाँ पे गई बर्ड। या फिर द चाइल्ड रैन, आपको नहीं पता कि चाइल्ड कहाँ जा रहा है, मतलब बच्चा कहाँ रन कर रहा है, बस आपको पता है कि बच्चा भाग गया, चिड़िया उड़ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, बट इसका मीनिंग टोटल निकल रहा है, दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज नॉट अ फ्रेज। ओके, इसका मीनिंग टोटली निकला है, इसलिए ये सेंटेंस को हम लोग को मानना ही पड़ेगा कि हाँ इट एग्जिस्ट्स इन द पेरिफेरी ऑफ ग्रामेटिकल इंग्लिश। ओके, करेक्टली ग्रामेटिकल इंग्लिश। सो हम लोग को ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और आपको ट्रांजिटिव आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ओके, ऑल दिस फॉर द सेक ऑफ बीइंग करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, so now we are stepping ahead for regular verbs. So regular verb अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो वो होगा these verb form their past tenses and past participle by adding ed or d to the base form. ओके, तो जो रेगुलर वर्ब है, मतलब इसको हम लोग समझ लो कि देखो वर्ब के मैं आपको टेंसेस में ठीक से समझाऊंगा, बट यहाँ बहुत ही मतलब समझ लो, बस जस्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। कि टेंसेस के 3 फॉर्म होते हैं, सबको पता होगा टेंसेस के 3 फॉर्म होते हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, तो जो यहाँ इसको बोलते हैं बेस ऑफ टेंसेस, मीन्स ये बेस टेंसेस है। इसके अगर इसमें आप थोड़ा सा और जोड़ोगे तो पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वैसे रहेगा, फिर या फिर कंटिन्यूस टेंसेस हो जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जो रेगुलर वर्ब्स है वो जब हम लोग एक बेस टेंस का यूज़ करके जब सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि अगर पास्ट में आप कोई भी सेंटेंस लिखोगे तो उसमें ईडी ऐड होगा या डी ऐड होगा, ठीक है। तो जब बेस फॉर्म जब रहता है तब इसको बोलते हैं, जब बेस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं किसी वर्ब का तो होता है रेगुलर वर्ब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा ही वॉक्ड टूवर्ड्स यू, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ही वॉक टूवर्ड्स यू। तो वॉक आपको पता होगा, वॉक प्रेजेंट, अगर वॉक लिखोगे तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, अगर जस्ट ईडी ऐड कर दिया तो वो होगा पास्ट टेंस, नॉट एनीथिंग एक्स्ट्रा, दोनों ही बेस फॉर्म है। ओके, दोनों ही बेस फॉर्म है, तो ये हो गया रेगुलर वर्ब। अब आते हैं हम लोग इर्रेगुलर वर्ब पे, ठीक है। इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें रेगुलर वर्ब में बेस फॉर्म यूज होता है, इसमें बेस फॉर्म यूज नहीं होगा। तो दीज वर्ब्स हैव इरेगुलर फॉर्म्स फॉर देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो जैसे आपको पता चली गया होगा कि यहाँ पे पास्ट टेंस और उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। ओके, सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो हम लोग एक बहुत ही बेसिक यूज करते हैं, लाइक ही swam in the pool. Okay, swam is the word here. Okay, and this is an irregular verb used in a sentence, and this is meaningful, so we have to accept in the periphery of grammatical English. Okay, अब हम लोग यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब, ठीक है। These are verb phrases that consist of main verb combined with a preposition on an adverb. Okay, जो मेन सेंटेंस है उसमें वर्ब फ्रेज दैट इज कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब, मीन्स एक वर्ब फ्रेज रहेगा और उसमें एक वर्ब, मेन वर्ब भी होना चाहिए, तभी सेंटेंस का मीनिंग पहली बात बनेगा। मीन्स अगर फ्रेजल वर्ब भी है जिसमें हम लोग एम्बिगुअस रहेगा कि ठीक है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, यू वुड से इफ दिस इज ओनली फ्रेजल मीन्स वर्ब इज इन फ्रेज फॉर्म, ठीक है। बट अगर उसी फॉर्म में हम लोग मेन वर्ब को भी ऐड कर देंगे तो वो कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको थोड़ा और करना है तो इसमें प्रीपोजिशन भी ऐड कर सकते हो और एडवर्ब भी ऐड कर सकते हो, एंड इट विल बी बिकम अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखें, दे टर्न ऑफ द लाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ऑफ है प्रीपोजिशन, ओके, टर्न ऑफ द लाइट, ओके, समझ गया।
Now this is next topic and I would say it is an important topic. So categories of verb, कि हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब तो देख लिए, अब हम लोग कैटेगरीज ऑफ वर्ब देखना है, ठीक है. ओके, लेट मी गो फॉर द वर्ब इरेगुलर एंड रेगुलर. हम लोग शायद उसमें डिस्कस कर चुके थे बट वी विल डिस्कस इट हियर. So sorry for the gap. Actually, there was a glitch. So we should continue. So sorry for the gap. There was a glitch and I had to repair that. So let's continue. So we were, as you know, we were doing the rest of the verb, rest of the like types of the verb, and this is categories of the verb. And so we should actually some topics are actually covered in both the areas. Okay, actually they have importance in both the areas, so they are also covered in both the areas. So like regular and irregular verbs was also covered in types of verbs, and it should also be covered in categories of verbs. Okay, so you must be knowing that regular verbs, they can change forms to indicate past actions or ongoing actions. Okay, typically the past form adds ed to the root verb. Okay, you know that. Okay, so irregular verbs, these verbs do not follow the ed rule and have a unique form. Okay, learning them is essential. Like अगर आप रेगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हो तो आप ed फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, ठीक है. और अगर आप इरेगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हो किसी सेंटेंस में, अगर आपको वैसे लग रहा है कि सेंटेंस में यूज़ होना चाहिए, तो आपको इरेगुलर वर्ब में आप ed फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हो. आपको या तो पास्ट पार्टिसिपल या कुछ भी वैसे यूज़ करना होगा, ठीक है. अलग वी फॉर्म यूज़ करना होगा, वर्ब फॉर्म का अलग यूज़ करना होगा. जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इरेगुलर वर्ब में डाल दें, लाइक ही हैज़ searched for his book. ओके, तो यहाँ पे सर्च हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है. सर्च हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है. और अगर हम लोग यहीं पे सर्च का यूज़ ना करके अगर हम लोग कुछ और यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहता, ठीक है. अब अगर हम लोग को इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है तो हम लोग ये कर रहे हैं, बट अगर इसी सेंटेंस को हम लोग को अगर इरेगुलर में यूज़ करना रहता है तो हम लोग को यहाँ पे पहले तो बात तो थोड़ा सा टेंस के साथ मतलब टेंस को थोड़ा सा बेंड करना रहता. जैसे एग्जाम्पल देता हूँ इरेगुलर वर्ब में, ही इज सर्चिंग फॉर हिज बुक. ओके, सो यहाँ पे ईडी का यूज़ नहीं किया हमने यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर दिया, सर्चिंग फॉर द बुक. ओके, और सर्चिंग और लुकिंग फॉर द बुक, यहाँ पे एक्चुअली लुकिंग था, तो ही इज लुकिंग फॉर हिज बुक. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का अभी हम लोग ये करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखेंगे. लाइक verbs can be classified as transitive and intransitive or detransitive based on how they interact with the object. Okay, when I was a student there was only two types of transition, that was transitive and intransitive. Now as I said, the world is advancing, so should you. So यहाँ पे detransitive अभी आ रहा है and we will study it very properly when I am in this chapter. Okay, so okay, like the transitive verbs, these verbs are direct, take a direct object. Okay, like example is Vincent gave chocolates, और okay, both direct and indirect objects. Okay, यहाँ पे gave जो है ये इसमें यूज़ हुआ है, Vincent gave chocolates. Okay, एंड इसमें बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकता था एंड यूज़ भी हुआ है, इसके वजह से ये सेंटेंस मीनिंगफुल है. बट अगर यही सेंटेंस अगर हम लोग किसी और ये भी करेंगे तो ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब में देखें, दीज वर्ब्स डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे कि रैन इन द लिटिल गर्ल रैन. ओके, दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, सो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखें अभी ट्रांजिटिव वर्ब्स का, जैसे कि हम लोग देख ही चुके हैं, विंसेंट गेव चॉकलेट टू हिज ब्रदर. विंसेंट गेव चॉकलेट्स टू हिज ब्रदर. यहाँ पे एक बहुत ही डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, पहले तो चॉकलेट है, ठीक है, कि विंसेंट ने क्या दिया, विंसेंट ने चॉकलेट दिया.
तो ये ट्रांजिटिव वर्ब फॉर्म में आता है क्योंकि यहाँ पे एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और जैसे कि हम लोग पता है हम लोग को इन ट्रांजिटिव में यहाँ पे एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट था ही नहीं। द लिटिल गर्ल रैन, कहाँ रैन, कहाँ रैन नहीं बताया, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। बट मीनिंगफुल तो दोनों ही सेंटेंस है कि द लिटिल गर्ल रैन, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ओके। अब जैसे कि अगर हम लोग इंट्रांजिटिव का अगर एग्जांपल देखें, फ्रांसी वॉकड, वॉकड। अब ये भले ही सेंटेंस हो, जब लग रहा है कि ये फ्रेज है, ठीक है, बट ये एक सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है कि फ्रांसिस वॉक, कहाँ वॉक की नहीं बताया, मीन्स ऑब्जेक्ट तो नहीं बताया, बट ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है कि हाँ वो वॉक कर रही है या फिर वो वॉक की थी, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें ट्रांजिटिव में, माई मॉम क्लीन द हाउस, क्लीन द हाउस। There is a very nice subject and object relation in this sentence, and as so the verb. Okay, so this is an example of transitive verb. अब अगर हम लोग ये देखें ट्रांजिटिव, आई थिंक टू मच एग्जाम्पल हियर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so this actually when I was a student of language, a student of English, this was my favorite topic because by using this you can bend actually the about the speaker, means अगर तुम कुछ बोल रहे हो एंड तुम्हें उससे साउंड कराना है कि तुम नहीं बोल रहे थे, तुम सामने वाले जो सुन रहा है उसको बोल रहे थे, तो तुम वो कर सकते हो इसका यूज़ करके, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी मच यूजफुल। लाइक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जॉन wrote the letter, sorry, first let us read what is, let us understand what is this. Okay, a verb may tell us about what a person or thing does. Okay, ये तो पता है आपको। in active voice the subject does the action with the help of a verb, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का हेल्प लेके ही ये मतलब इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना पा रहा है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट मेकिंग सेंटेंसेस मीनिंगफुल, एंड अगर ये जैसे सेंटेंस तो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, बट अगर फ्रेज भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो मीनिंगफुल रहता है, बट उसका जनरली यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि उसको हम लोग जब हम लोग ग्रामेटिकली उसका स्फीयर में देखें तो उसका यूज़ नहीं हो सकता ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें, लाइक द एग्जाम्पल इज जॉन रोट द लेटर, जॉन रोट दी लेटर, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है, ओके। जॉन रोट दी लेटर, यहाँ पे बहुत ही जॉन और लेटर के बीच में बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन बनाया है इस वर्ब ने, ठीक है, रोट द वर्ब ने बहुत डायरेक्ट कनेक्शन बनाया है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। अब इन पैसिव वॉइस देख लेते हैं, ठीक है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन विद इन द हेल्प ऑफ अ वर्ब, ओके। मीन्स जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में एक्ट करेगा वर्ब की हेल्प से। मीन्स हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ओके, पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब को, फिर उसके बाद सब जो यहाँ समझ लो कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे बहुत ही क्लियर कट एग्जाम्पल होगा, ठीक है, ठीक है, like the letter was written by John, ओके। अब इसका एक्चुअल मीनिंग है कि द लेटर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। मीन्स बना नहीं है, बट वी आर सीइंग दिस एज इन ए सेंटेंस, एंड जो वर्ब रोट था वो यहाँ पे रिटन हो गया। मीन्स आप वर्ब का जब यूज़ कर, मतलब अगर आपको सेंटेंस का वॉइस को चेंज करना है, मीन्स आपको डूअर और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको एक्सचेंज करनी है, तो आपको जो यूज़ करना होगा वो यूज़ करना होगा वर्ब का, ठीक है। वेरी लाइक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई वुड सी, बिकॉज यहाँ पे रोट से रिटन, यू कैन सी दैट इट इन एक्टिव वॉइस इट वॉज रोट, एंड इन पैसिव वॉइस इट्स रिटन, ओके। So I think we have completed verb, and some things which need other knowledge of other chapters, like
वी फॉर्म्स. ओके, वी फॉर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली इट्स द एंड ऑफ द वर्क. मीन्स अगर आप वर्क पढ़ रहे हो तो जो उसका एंड होगा, जो आपका उसका कंक्लूजन मीन्स आप उसका समरी जब बना पाओगे तब आप वी फॉर्म भी बना पाओगे. ठीक है, तो वी फॉर्म आपको बनाना बहुत नेसेसरी है, बट उसको समझने के लिए आपको टेंसेस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए. तो जब मैं आपको टेंसेस पढ़ा लूँगा तब मैं आपको वी फॉर्म्स का भी नॉलेज दे दूँगा. वी फॉर्म्स में तब पढ़ाऊँगा. इट वुड टेक हार्डली 15 to 20 minutes and that lecture would be the, you may say that would be the real summary or real conclusion of the subject of the chapter verb. Okay, so now the chapter verb is complete and you must be knowing me. I am your Sandeep Kumar Malik, your English tutor, and NCET क्रैक करना है तो क्रैक NCET से ही करना है. थैंक यू.